So, the topic is why God became man. और जैसे शीर्षक है कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बने. And as we saw, just a glimpse or summary of what we going to see, why he became man. और जैसे हमने थोड़े रूप में देखा कि परमेश्वर मनुष्य क्यों बने. And so I want us to go back to the place where it all started. और मैं चाहता हूँ कि हम चले उस जगह पर जहाँ से ये सब शुरू हुआ. The Garden of Eden. अदन की वाटिका. We made this tree. हमने बनाया ये. Tree of knowledge of good and evil. और सही बुद्धि का ज्ञान का ये वृक्ष. So we wanted to show this side as the Garden of Eden. और हम ये दिखाना चाहते हैं कि ये भाग जो है अदन की वाटिका है. And so God placed a garden in Eden in the east. और परमेश्वर ने जो है अदन की वाटिका को ईस्ट साइड में रखा है. And in the middle of the garden there was a tree of life and the tree of knowledge of good and evil. जीवन का वृक्ष और भले बुरे ज्ञान का वृक्ष, ये दो वृक्ष को बीच में रखा है. And then he created us. और उसके बाद हमारी रचना की. In his own image and likeness. उनकी खुद के स्वरूप में, उनकी समानता में. Now in his image. अब जब हम सुनते हैं कि उनके स्वरूप में, what does it mean that we are created in his image? तो इसका क्या मतलब है कि हम परमेश्वर के इमेज में या उनके स्वरूप में बनाए गए हैं. So one of the meaning of the Hebrew word behind image is idol. और इब्रानी भाषा में स्वरूप इसका अर्थ है कि आइडल, मूर्ति. So in a way we are an idol. और ऐसा सोचे कि हम एक आइडल है, एक मूर्ति के समान है. And to explain it further, this year itself we have in India there was the inauguration of Ram Temple, right? और इसी साल जो हम देखते कि भारत में राम मंदिर का स्थापना हुआ. And there was a big occasion. और एक बड़ा जल्लोष मनाया गया. And that the name of the ceremony was Pran Pratishtha or Pran Pratishtha, both are the same thing. और उस जो कार्य था, जो ओकेशन था, उसका नाम प्राण प्रतिष्ठान रखा था. Now the meaning of that term is to invite or invoke the deity to come and reside in that idol. ये जो क्रिया की उसका ये अर्थ है कि वो जो मूर्ति बनाई है उसके अंदर वो उनका भगवान आकर रहे. And so when we read Genesis chapter 1, the creation account, और जब हम उत्पत्ति के पुस्तक में पढ़ते हैं जो परमेश्वर ने रचना करना शुरू किया, तब biblical scholars, जो biblical scholars है, when they read the Bible, when they read the literature from other places from the same time period as the Bible is, और जब वो दूसरे पुस्तकों को पढ़ते हैं उसी समय में, बाइबल के समय में जो लिखा गया है, तभी Israel's neighboring countries, जो इज़राइल के आजू-बाजू के जो प्रदेश थे तब की बात है. They call it ancient Near East. तो ancient Near East बुलाया जाता है. Ancient Near East is the geographical area spread across from Egypt to Mesopotamia. तो मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक ये जो प्रदेश था वो फैला हुआ था. Israel was in slavery in Egypt. और इज़राइली जो थे वो मिस्र में बंदी में थे. And then they were taken in exile in Babylon. और बेबीलोन में जो है उनको बंदी बनाकर लेकर गया. And Babylon is one of the major cities of Mesopotamia. और मेसोपोटामिया में sorry for that, एक मेजर सिटी है बेबीलोन. So the Genesis account, और उत्पत्ति की जो बातें कही गई है उत्पत्ति में, so in the ancient Near Eastern accounts, in their rituals, in their ritual text, in the scriptures, और उनके शास्त्रों में, so they see that the temple is created, लिखा है कि मंदिर को बनाया गया, and then they place an idol, मंदिर में मूर्ति को रखा, and then there is a mouth opening ceremony. मुंह खुले ऐसा एक सेरेमनी, उस मूर्ति का मुंह खुले ऐसा एक सेरेमनी आयोजित किया गया. And in that ceremony they invoke the deity to come and reside and come and dwell in that idol. और उस ओकेशन में क्या करते कि वो चाहते हैं कि उनका भगवान आकर उस मूर्ति में बसे ताकि उस मूर्ति का मुख खुले. And so biblical scholars when they researched and when they read and when they studied all those scriptures and they read
Of course, they read the biblical story as well, and they saw the parallels in those stories. और जब बिब्लिकल स्कॉलर्स जो है, जो ज्ञानी लोग थे, बाइबल का जो अध्ययन करते हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ भी पढ़ा और उसके साथ जो है उसकी तुलना की. And then they saw parallels, they saw similarities in them. तो उन्होंने देखा कि कुछ तो करीबीपन था, कुछ तो मिलता जुलता चीज़ था. And the whole creation account they saw as a creation of a cosmic temple. तो उन्होंने ये जो रचना जो की है उत्पत्ति में, वो ऐसा देखा कि पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई है. So Genesis chapter 1 is talking about a creation of a cosmic temple. तो उत्पत्ति में जो लिखा है, जो उत्पत्ति की बातों को लिखा है कि जो ब्रह्मांड का निर्माण हुआ. And so Adam is placed, an idol is placed, आदम को रखा गया वाटिका में, and God breathes into his nostril, और परमेश्वर उसके नथनों में श्वास फूंकते हैं, and he becomes alive. और उसमें प्राण आता है. An idol is placed there. एक मूर्ति को रखा है. And so on the seventh day God rests. और लिखा है कि 7वें दिन परमेश्वर ने आराम को किया. And the same thing we saw in their text as well, that after the temple is created, the idol is placed, the mouth opening ceremony is done, everything. After everything is done, the deity rests. और दूसरे जो ग्रंथों में हम देखते हैं कि वो मूर्ति को रखा, 7 दिन के बाद जब सब कुछ हुआ तो वो मूर्ति ने आराम किया. Not मूर्ति ने आराम किया, मूर्ति रखा तो उनके भगवान ने आराम किया. Like Adam was placed and he became alive and Yahweh rested. और जैसे आदम को परमेश्वर ने जीवन का श्वास दिया तो वो जीवित हुआ और परमेश्वर ने फिर रेस्ट किया. And God said, be fruitful and multiply. और वचन में लिखा है कि प्रभु ने आज्ञा दी कि तुम फूलो, फलवंत हो जाओ, and subdue the earth. और पूरे धरती पर अपने अधिकार को रखो. And God wanted to expand his kingdom. और प्रभु अपने राज्य को बढ़ाना चाहता था. Beyond the garden, beyond the Eden. अदन के वाटिका के परे वो अपने राज्य को बढ़ाना चाहते थे. And so let's say I am Adam. और कल्पना करें कि जैसे मैं यदि आदम हूँ, One idol is placed in Eden. एक मूर्ति को अदन की वाटिका में रखा है. And multiplying here, so Adam will have sons. आदम के बेटा हुए, and daughters. बेटियां भी हुई. And they will be idols placed somewhere else, and they will spread in other places. तो ऐसा सोचे कि वो मूर्ति है जिनको आगे दूसरे वाटिका में And they रखा will गया. expand God's dominance, God's sovereignty throughout the earth. और परमेश्वर की महानता को, उनके राज्य को वो फैला रहे So हैं the बाकी सारे जगहों में. purpose of creating Adam तो जो उद्देश्य था आदम को बनाने के was पीछे, kingdom building. राज्य को बनाना, इसका उद्देश्य था. We created in His image. हम जो है जिनको परमेश्वर ने अपने स्वरूप और समानता में बनाया है, Our purpose is to build the kingdom, हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर के राज्य को हम to बढ़ाएं, further the kingdom, परमेश्वर के राज्य को हम आगे बढ़ाएं, and be His representative here. और हम उनके प्रतिनिधि बने यहाँ पर. Because we are His idol, क्योंकि हम उनके स्वरूप में बनाए गए हैं, तो representative of the Most High God, हम उनकी प्रतिनिधि करें, इसलिए. and that is why idolatry is such a serious offense in the Old Testament. और इसलिए पुराने नियम में जब मूर्ति पूजा के बारे में लिखा है, इसलिए ऐसा लिखा है कि परमेश्वर क्यों इससे घृणा करते थे. And that is why the second commandment says, you shall not make for yourself an idol. और इसलिए दूसरी आज्ञा कहती है 10 आज्ञाओं में से कि तुम अपने लिए किसी मूर्ति को ना बनाना. In the likeness of anything in heaven or in the earth beneath or in the waters below. किसी भी समान में मत बनाना, धरती पर, धरती के नीचे अपने लिए एक मूर्ति मत बनाना. We are His idols, and God tells us that don't create another idol because you are the idol that needs to be created, and I have done that already. और क्योंकि हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं, इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि तुम और मूर्ति को मत बनाओ. You are not to bow down to anyone else. तुम्हें किसी दूसरों के सामने झुकना नहीं है. Because I have invested, because I dwell in you. My name dwells in you. My image dwells in you. क्योंकि मेरा स्वरूप जो है तुम्हारे अंदर है और मैंने तुम्हें बनाया है. So that's the status that God has given us. तो वो एक औदा प्रभु ने आपको और मुझे दिया है. Being in His image, not just about the faculty of reasoning. प्रभु के स्वरूप में बनाया गया सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम सोच सके, Not just that we have wisdom and knowledge, कि हमें ज्ञान है, बुद्धि है, that we can discover and then we can do science and all those stuffs. कि हम जो है कुछ साइंस में उन्नति करें, आगे बढ़े. It was a status given to us. ये हमें एक औदा दिया गया परमेश्वर के द्वारा. No other created being, no other creature
could take that status. और बाकी सारी चीज जिसकी सृष्टि हुई, किसी और को ये ओहदा नहीं दिया, पर मनुष्य को ये ओहदा दिया है। Everything else was given under our dominance. और हर एक बात जो है वो मनुष्य के अधीन में दी गई थी। And so this human now created so important in the sight of God. और ये मनुष्य जो इतने जिसको परमेश्वर ने इतना मूल्य के साथ With बनाया such a था, great mandate और एक ऐसा बड़ा जिम्मेदारी जो दिया था to spread the kingdom. कि जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाए। Now what does it do? तो मनुष्य ने क्या किया? He eats the fruit. उसने उस फल को खाया। Now when he eats the fruit, और जब उस फल को खाया, what happens? क्या हुआ? What happens? क्या हुआ? Yes. Death comes. Death. मृत्यु आई। So after they eat the fruit, और फल खाने के बाद when God is talking to Eve, जब परमेश्वर हवा से बात कर रहे हैं, he curses the Satan. वो शत्रु को, जो शैतान को जो है श्रापित करते हैं। And then moving to Adam, और उसके बाद आदम की ओर देखते हैं, God curses the land, the ground. भूमि को श्रापित करते हैं। Genesis chapter 3 verse 17 onwards if you read. उत्पत्ति के पुस्तक 3 अध्याय 17 वचन से यदि हम पढ़े तो, It says, cursed is the ground because of you. भूमि श्रापित है तुम्हारे वजह से, Through painful toil you will eat food from it. और पूरे मेहनत के साथ तुम उस पर काम करोगे और उसका फल खाओगे All the days of your life. तुम्हारे जीवन के हर एक दिन। It will produce thorns and thistles for you. वो केवल कांटों को तुम्हारे लिए उगाएगा, And you will eat the plants of the field. और तुम जो है उस भूमि की उपज को By the खाओगे, sweat of your brow you will eat your food. और पसीना बहाते हुए तुम खाओगे मेहनत कर कर, And the next line says, until you return to the ground. जब तक कि तुम वापस उसी भूमि में नहीं जाते Since हो, from it you were taken. क्योंकि उसी भूमि से तुम उठाए गए हो। So sin, death entered flesh. और जब मृत्यु का प्रवेश हुआ Flesh, शरीर में, in the flesh. It says you will go, from dust you are and you'll go to the dust. तो लिखा है कि तुम मिट्टी से बनाए गए हो और मिट्टी में वापस जाओगे। Now when I say that death entered flesh, remember that term. और ये बात को याद रखिए, जब मृत्यु जो है वो शरीर में आई, Because when we go to Romans chapter 8, और जब हम रोमियो की पुस्तक में जाते हैं 8वां अध्याय, chapter 8 verse 22 to 24. रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 22 से लेकर 24 तक हम जब पढ़ते हैं, So in Genesis we saw the ground was cursed. हम देखते हैं कि उत्पत्ति में भूमि को श्रापित किया गया, The sin that they committed, the disobedience that they committed, और जो पाप उन्होंने किया, जो आज्ञा नहीं माना वो किया, did not just bring corruption to the flesh, human flesh, केवल मनुष्य शरीर में उसका असर नहीं हुआ, but Romans says the entire creation now groans in pains of childbirth. और रोमियो की पुस्तक में लिखा है कि पूरा सृष्टि जो है उस दुख में है आज। And verse 23, chapter 8:23, Romans says, not only so, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly of our adoption to sonship. And the next line says, the redemption of our bodies. We are waiting the redemption of this flesh because this was subjected to corruption because of the disobedience. और हम जो है आज उस चीज की बात जोते हैं कि इस शरीर से कब हमें छुड़ाया जाएगा। And so death entered now. और जब मृत्यु जो है उसने प्रवेश किया शरीर में, So Athanasius, one of the giant of the church fathers of the 4th century, in his book on incarnation, he says, why can God, if Adam, let's say Adam repented, why can God just forgive if we repent? ये चर्च फादर है जिनका नाम अथनेशियस है, और वो कहते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि यदि आदम माफी मांगता है तो प्रभु ने क्यों माफ नहीं कर दिया उसे? Why can God just forgive? He expects us to forgive our fellow image bearers, right? और प्रभु हमसे कहते हैं कि तुम दूसरों को क्षमा करो, तो प्रभु ने क्यों नहीं आदम को क्षमा Why किया? can he do that? क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया? Why can he just forgive? क्यों प्रभु ने आदम को क्षमा Why नहीं did he किया? have to punish Jesus for our sins? क्यों यीशु मसीह को जो है उस पनिशमेंट को लेना पड़ा, उस शिक्षा को लेना पड़ा? Now in our Bible, Genesis chapter 2 verse 17 says that do not eat the fruit of the tree. If you eat, what will happen? You will. So in English it says you will certainly die. और अंग्रेजी में लिखा है कि यदि तुम जब उस फल को खाओगे तो तुम निश्चय में मरोगे। But Hebrew says पर इब्रानी में लिखा है you will die.
तुम मरोगे मरोगे। Like Jesus speaks, truly, truly, I tell you. जैसे यीशु भी जब वचन में लिखा है कि यीशु कहते हैं कि सही में सचमुच सचमुच मैं कहता हूँ। So God in the Old Testament says, you will die. If you eat of the fruit of the knowledge of tree of good and evil, you will die. तो लिखा है इब्रानी भाषा में कि जब तुम उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष से जब उस फल को खाओगे तो तुम मरोगे मरोगे। The death is inevitable. मृत्यु जो है वो उसे कोई रोक नहीं सकता, उसको आना ही है। It was a divine decree. वो एक दैविक ऐसी घोषणा की गई थी। Die. It was so serious, and that is why in our English translations, the first die is translated surely or certainly you will die. तो इसलिए दो बार जब बोला गया तो उसका ये अर्थ है कि certainly निश्चय ही ऐसा होगा। Darius, an earthly king, in Daniel 6. और दानियल की पुस्तक में डारियस राजा के बारे में हम जब देखते 3 हैं, times in that chapter, 3 बार उस अध्याय में it says that according to the law of Mede and Persia, the decree cannot be repealed, it cannot be cancelled. और मीडिया और पर्शिया के लॉ के हिसाब से, उनके शासन के हिसाब से जो एक बार जो बात राजा ने कह दी उसको कभी बदल नहीं An सकते। earthly king has to stand by his decree no matter what. एक ऐसा किंग जो इस धरती का है, जब वो कुछ कह देता है तो उसके विरुद्ध नहीं जा सकता। Imagine the creator of heaven and the earth, तो जो हमारा परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया, the most high God, परमेश्वर जो महान है, when he says if you eat you will die. जब वो कहते हैं कि जब तुम इस फल को खाओगे तो तुम मरोगे मरोगे। So if repentance would nullify the decree, तो यदि हम जब पश्चाताप करते हैं, वो यदि इस घोषणा को नलीफाई करता है, उसका कुछ असर नहीं रह जाता, ऐसा करता है तो then God is not true to himself. तो परमेश्वर खुद के प्रति सही नहीं बने रहे। God has to remain true to himself. परमेश्वर को अपने प्रति सच रहना है। I believe you all remember when Pastor was talking about how God made the covenant between Abraham and God had to walk between those things. और जब पासबान हमें सिखा रहे थे तो हमने देखा कि कैसे जब अब्राहम के साथ परमेश्वर ने वाचा को बांधा तो परमेश्वर को पहले आगे चलना पड़ा। God cannot go back on what he has committed. परमेश्वर ने जब कुछ बातें कही उससे पीछे नहीं हट सकते वो। Repentance could not nullify the divine decree. तो जो पश्चाताप किया है वो उस बात को खाली नजरअंदाज नहीं कर सकता, खारिज नहीं कर सकता जो Even God परमेश्वर ने himself कहा है। cannot nullify. परमेश्वर खुद भी उस बात को नलीफाई नहीं कर Imagine सकते। God forgave Adam. ऐसा सोचे कि यदि परमेश्वर ने आदम को क्षमा किया रहता Down the तो line, Abraham comes along. अब्राहम आता उसके बाद God says certain things. Abraham, don't do this, otherwise this will happen. और अब्राहम से परमेश्वर कहते कि ऐसा मत करो तो ऐसा ऐसा होगा। Abraham knowingly, unknowingly commits that same thing. जानकर अनजाने में यदि अब्राहम ने पाप कर दिया, फिर Abraham remembers, Adam repented. और यदि अब्राहम तब बोलता कि अरे आदम ने तो क्षमा पश्चाताप किया, He was forgiven. उसको माफी मिली, Let me also go and repent. तो मैं भी जाकर जो है पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मुझे भी माफ करेंगे। So divine decree will not have any value. तो जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ बात, उसका कुछ मतलब या उसका कुछ वैल्यू नहीं रहेगा। Now talking about repentance, अब जब हम पश्चाताप की बात करते हैं तब another giant of the 20th century, Christian giant, और जो ज्ञानी है क्रिश्चियन जायंट C.S. Lewis, C.S. he says, वो कहते हैं only a good man can repent. केवल एक अच्छा मनुष्य ही पश्चाताप कर सकता है, Only a bad man needs to repent. और केवल एक बुरे मनुष्य को ही पश्चाताप करने की जरूरत है। The worst you are, जितने बुरे तुम हो, the more you need it, तुम्हें उसकी ज्यादा आवश्यकता है पश्चाताप की, and the less you can do it. और थोड़ा तुम कुछ कर सकते हो। The worse you are, the more you need it, and the less you can do it. और जितने बुरे तुम हो तो तुम्हें ज्यादा करना है पर तुम थोड़ा कर पाओगे। And he says, and repentance. और वो कहता है कि पश्चाताप जो है, So when we repent, we go back to God and we say sorry. जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम परमेश्वर की ओर जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मुझे क्षमा करें। What does that mean? उसका मतलब क्या है? C.S. Lewis says repentance is dying and suffering. और C.S. लुइस कहते हैं कि पश्चाताप करना मतलब खुद को मारना और उस ताड़ना को सहना। 38, going to be 38 now. मैं अभी 38 इयर्स का होने वाला हूँ।
years of my life, I have a certain way of talking, certain way of behaving, there are certain characteristics that I've developed. और कुछ कुछ बातों को मेरे अंदर है जो डेवलप हुई है, मेरा बोलना, मेरा चलना. And after 38 years, now I realize that those were wrong. और अभी 38 साल का 38 राइट हाँ 38 साल का मैं हुआ और अभी मुझे पता लगता है कि वो सारे जो मैंने बातें की, जैसे मैं बोलता था, वो सब गलत है. And I go back to God and say, I'm sorry, I want to be a better person now. और अब जब मैं प्रभु के पास जाता हूँ और मैं कहता हूँ कि प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनना है. But each day those 38 years of experience kick in. पर जब ये जो 38 साल का मैं जब अभी हुआ हूँ, तो वो सारे अनुभवों को लेकर जो मैं आगे बढ़ा हूँ, तो वो सारे अनुभव बीच में आते हैं. And those bad habits, and I suffer every day. और वो जो गंदी आदतें जो मैंने अपनाई थी, उसके वजह से मैं जो है सफर करता हूँ. And that self of mine has to die every day. और वो मेरा जो मनुष्य तत्व है, उसे रोज मरना पड़ता है. So repentance is suffering and dying. तो पश्चाताप इसका ये मतलब है कि उस सफरिंग को लेना और रोज शरीर में मरना. And so C.S. Lewis further says, only a perfect man can repent perfectly. और C.S. लुइस कहते हैं कि केवल एक सिद्ध मनुष्य जो है सिद्धता से पश्चाताप कर सकता We है. cannot even repent perfectly. हम पश्चाताप भी अच्छे रीति से नहीं And so we करते need God's help. और इसलिए हमें परमेश्वर की मदद की जरूरत And है. so when we teach our children to write letters, alphabets, और जब हम हमारे बच्चे को, जब वो छोटे रहते हैं, उनको लिखना सिखाते we हैं, hold their hands हम उनके हाथ को पकड़कर लिखना सिखाते हैं. and we help them to write an alphabet. हम फिर मदद करते हैं कि वो एक अक्षर को लिखे. So God puts a little bit of His love and we are able to love. और प्रभु उनका प्रेम हमारे हृदय में देते हैं और तब हम जो है अपने बच्चों से प्रेम कर पाते God हैं. puts a little bit of things that we need and then we are able to do it. और प्रभु हमें सिखाते हैं और फिर उसके बाद ही हम अपने बच्चों के लिए कर पाते हैं. But now we need to repent. पर अभी जब हमें पश्चाताप करना है, And तभी repentance is dying and suffering. रिपेंटेंस जो है, पश्चाताप है कि रोज जो है सफर करना और रोज शरीर में मरना. This is something that God Himself doesn't have. How can He help me? तो ये बात परमेश्वर के अंदर खुद में नहीं है, तो वो मुझे कैसे बता How सकेंगे? can our God die? How can He cannot die, so how can He help me die? वो कभी मर नहीं सकते, तो वो कैसे मेरी मदद करेंगे रोज मरने के लिए? And going back to Athanasius now. मैं एथेनेशियस जो चर्च फादर है, उनकी बातों की ओर आपका ध्यान ले जाऊंगा. He says it would have been better not to create वो कहते हैं कि ये अच्छी बात होती यदि परमेश्वर ने सृष्टि का निर्माण ही नहीं किया होता, तो than to create and see His creation perish and be able to do nothing. ये करते कि परमेश्वर ने बनाया और देख रहे कि कैसे उनकी सृष्टि रोज मर रही है. उनकी सृष्टि रोज मर रही है और वो कुछ नहीं कर रहे या फिर कुछ नहीं कर पा रहे हैं. इससे भला होता कि वो ना बनाते. So who can rescue us now? तो अभी परिस्थिति ये है कि हमें कौन बचा सकते थे? Athanasius says the word logos in John chapter 1. और यूहन्ना की पुस्तक में पहला अध्याय में लॉगोस जो शब्द It है, says through Him all things were made, without Him nothing was made that has been made. लिखा है यीशु मसीह के बारे में कि उनके द्वारा सारी चीजों का निर्माण हुआ, उनके बिना कुछ भी निर्माण And नहीं it हुआ. is through whom we are created. It is only He now who can reverse that corruption, who can bring us back from corruption to life. और केवल मसीह के द्वारा हम बनाए गए, तो केवल वही उस बात को जो है फिर से शुरू कर सकते हैं. But again we are stuck. John again chapter 1 says Kaitheos and Hologos, the word was God. और फिर से यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि वो शब्द ही परमेश्वर था. Now again the same dilemma we have. How can God die? फिर से वही बात हमारे सम्मुख है कि परमेश्वर कैसे मर सकते Lewis says हैं. the same thing. How can God die? C.S. लुइस जो ज्ञानी है, वो भी ये कहते हैं कि परमेश्वर कैसे मर सकते हैं. But God appeared in the Old Testament to Abraham and other people, right? पर परमेश्वर जो है अब्राहम और पुराने नियम में हम देखते हैं कि उनके लोगों के सम्मुख वो प्रकट He हुए. appeared in flesh. वो शरीर में उनके सम्मुख प्रकट हुए. So being a God, He cannot die. परमेश्वर होने के नाते वो मर नहीं सकते. But what if this God, पर क्या जब ये परमेश्वर He is born as a human, वो एक मनुष्य का रूप लेकर जब आते हैं, and that human is infused with two natures. और वो मनुष्य जो है उनके अंदर दो व्यक्तित्व है.
100% human and 100% divine. 100% मनुष्य, 100% दैविक. So now God can become man, अब जब परमेश्वर मनुष्य बन सकते हैं, and becoming a man he can die, मनुष्य बनने के बाद जब वो मर सकते हैं, and that's why we see the word became flesh. और तब हम वचन को देखते हैं कि जो वचन था वो शरीर, वो देहधारी बना. Again, remember the word flesh. फिर से इस शब्द को याद रखें, फ्लैश, शरीर. Another giant of 11th century, Anselm, he says, और एंसलम जो चर्च फादर है वो ऐसा कहते हैं. he was a Christian monk. He says, what if God would have sent any other angel or archangel to die and and satisfy the divine decree? वो ऐसा कहते हैं कि क्यों नहीं प्रभु ने किसी स्वर्गदूत को भेजा और जो बातें उनके मुख से निकली थी उसके प्रति वो कार्य कर सके. He further says, if anyone other than God would have died for our salvation, our redemption, then we would owe our salvation and redemption to that entity and not to God. वो कहते हैं कि यदि कोई स्वर्गदूत जो है हमारे लिए मरते तो हमारा जो नमन है, हमारा जो झुकना है वो उस स्वर्गदूत के प्रति होता था, परमेश्वर के प्रति नहीं. And so only God can do that for us. और केवल परमेश्वर ही वो आपके और मेरे लिए कर And he सकते became हैं. flesh. और वो शरीर में आए. So this is the overall picture. तो ये पूरी बातें हैं.